छठ पूजा के पावन अवसर पर बराक वार्ता के सभी दर्शकों को हार्दिक बधाई प्रकट करते हुए मैं संजीव सिंह राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। सोनाई विधानसभा केंद्र के तुलारगाम पहले खंड के क्षेत्र के लोग मिशन वसुंधरा की सुविधा से हो रहे हैं वंचित। पत्रकारों के सामने व्यक्त किया नाराजगी। चुनाईबाड़ी पुलिस ने रूटीन तलाशी के दौरान फिर से 2 बांग्लादेशियों को किया गिरफ्तार। आगरतला से होते हुए गुवाहाटी व कोलकाता जाने की चल रही थी प्रयास। पधारखंडी के विधायक जितेंद्र पाल ने पधारखंडी रविंद्र भवन शिक्षा गृह में पुरस्कार योजना को लेकर छात्र छात्राओं के अध्ययन के बारे में नए कोर्स का किया शुरुआत। कोचिंग सेंटर खोले जाने पर छात्र छात्राओं में देखी जा रही है खुशी की माहौल। सीकर के शीलकुड़ी क्षेत्र में स्थित बरम बाबा मंदिर में पहली बार आयोजित हुआ गंगा आरती कार्यक्रम। वक्त पर लोगों की देखी गई ताता, लोगों में छाई हुई है खुशी की माहौल। कछार जिले के असम मिजोरम सीमावर्ती क्षेत्र खुली चोड़ा में सतेज को निष्क्रिय करने में जुटे गुवाहाटी के विशेषज्ञ दल। कामयाबी मिलने पर व्यक्त किया खुशी। सिलचर से कोलकाता उड़ान के दौरान एयर इंडिया के एक विमान सिलचर के कुमिरगाम हवाई अड्डे में वापस उतर आया क्योंकि इस विमान के पहिए पर कुछ तकनीकी खराबी थी। मुद्दे को लेकर लोगों में काफ़ी तनाव का माहौल छा गया। आखिरकार एयरफोर्स के कार्यकर्ताओं ने पूरे हालात पर नियंत्रण पाया और सही तौर पे इस विमान की मरम्मत में जुटते देखे गए। वारदात के बाद हवाई अड्डे के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने सभी विमानों की उड़ान रद्द कर दिया। बहरहाल एयर इंडिया के विकल हुए इस विमान का मरम्मत कार्य अभी भी चल रहा है, लेकिन कब तक उड़ान परिसेवा फिर से चालू होगी इस संदर्भ में कोई सूचना अब तक यात्रियों को प्रदान नहीं किया गया है। মুম্বাই যেতে হবে, মুম্বাইয়ের টিকিট করা হলো আমাদের ইন্ডিগো ছিল। তাহলে কি বলেছে কর্তৃপক্ষ? ক্যান্সেল করো, তাহলে রিফান্ড নাও। কিন্তু আমরা এখন রিফান্ড নিলে আমাকে প্রবলেম হবে, আমাকে যেতেই হবে। তো আমি কি করলাম, আরেকটা টিকিট করলাম ডে আফটার। কালকের টিকিট ওটা দিতেই পারবে না। আজকে কেন ক্যান্সেল করা হয়েছে আপনাদের? কিছু সিস্টেম ইস্যু, এয়ারপোর্টে কিছু ইস্যু আছে। রানওয়েতে তরফে কি জানানো হয়েছে, কেন বাতিল করা হয়েছে কিছু জানানো হয়নি? না, ওরা বলছে যে এয়ার ইন্ডিয়ার প্রবলেম, আমাদের কিছু প্রবলেম নেই। ইন্ডিগোরা বলছে আমাদের কোনো প্রবলেম নাই। কেন ক্যান্সেল করা হয়েছে? ঠিক আছে, আমাদের ফ্লাইট হচ্ছে ইন্ডিগো 1:10-এ। তো আমরা শিলচর এয়ারপোর্টে এসেছি অ্যারাউন্ড 11:25। যখন আমরা এয়ারপোর্টে ঢোকার চেষ্টা করলাম তখনই আমাদের ইন্ডিগো থেকে একজন ভদ্রলোক এসে বললেন যে এরকম ব্যাপার হতে পারে, ফ্লাইটটা ক্যান্সেল হয়ে যেতে পারে। তো আমরা বললাম কী হয়েছে? তো তখন বললেন যে এয়ার ইন্ডিয়ার একটা ফ্লাইট এখানে আটকে গেছে কিছু টেকনিক্যাল প্রবলেমের জন্য, এবং সেইটার জন্য রানওয়ে যেহেতু একটা, ইন্ডিগোর ফ্লাইট ল্যান্ডই করতে পারে। তখন যেহেতু আমরা ক্যালকাটা যাব, ক্যালকাটা থেকে আবার বম্বে যাব, সেহেতু আমরা খুব টেনশনে ছিলাম যে কী হবে, কী হচ্ছে, এখনও টেনশনে আছি। আমরা খুব চাইছি যে জিনিসটা যাতে সলভ হয়ে যায়। তো আমাদেরকে ভিতরে ঢুকতে দিল না, আমাদেরকে বাইরেই বসতে বলল। তো আমরা বসে আছি, কিন্তু আমার হাজব্যান্ডের যেহেতু কালকে বম্বেতে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট মিটিং আছে, ওর সাথে সাথে গিয়ে কথা বলেছে, ইন্ডিগোর অফিসিয়ালদের সাথে কথা বলেছে। তারপরে ইন্ডিগোর অফিসিয়ালরা বলেছে আমাদের হাতে কিছু নেই, আপনি এয়ারপোর্ট অথরিটির সাথে কথা বলুন। তারপরে ওর সাথে সাথে এয়ারপোর্ট অথরিটির সাথে কথা বলেছে। এয়ারপোর্ট অথরিটি বলছে আমাদের কোনো অল্টারনেট সলিউশন এক্ষুনি করা সম্ভব না, ইট উইল টেক সাম টাইম। তো তারপরে যেহেতু ওর খুব বড় লেভেলের একটা মিটিং আছে, হি ইজ এ ডিরেক্টর ইন ওয়ান অফ দ্য কোম্পানি, তো ওর সেহেতু কী করেছে, এভিয়েশন মিনিস্টারকে টুইটও করেছে যে আমরা এখানে এরকমভাবে আছি,
একে বলছে, ওকে বলছে, ও বলছে ওয়েট করো, মানে আমরা, আর এখানে শুধু আমরা না, এখানে অনেকে আছে যারা ক্যালকাটা গিয়ে অন্য জায়গায় যাবে। একটা মেয়ে কাঁদছিল, বলছিল প্লিজ ক্যান্সেল করো না, আমার এক্সাম আছে। তারপর একটা ছেলে, ও মেডিকেল পড়ে, ওর রাতে ট্রেন আছে ক্যালকাটা থেকে। তো এখানে অনেকে সাফার হয়, এবং আমরা এখন কি তাহলে বিমান বাতিল হয়েছে এরকম কোনো বিমান information বাতিল দেওয়া হয়েছে আছে? তার ইনফরমেশন আমরা হাফ অ্যান আওয়ার 45 মিনিটস আগে পাই। এখন কটা বাজে? আমরা জাস্ট 45 মিনিটস আগে পেয়েছি যে আমাদের কাছে মেসেজ এসেছে যে হ্যাঁ ক্যান্সেল হয়েছে। একটা লিঙ্ক পাঠিয়েছে ওরা, যে এই লিঙ্কটাতে তোমরা ওপেন করে রিফান্ড করে নাও। সেই লিঙ্কটা পর্যন্ত খুলছে না। আর লাইনের কি অবস্থা আপনারা দেখেছেন, ঝগড়া ঝাঁটি মারপিট হচ্ছিল। আমরা যে অনলাইনে রিফান্ড করব সেই লিঙ্কটা, উইন্ডোটা ওপেনই করছে না। তার জন্য আমি এসে লাইনে দাঁড়িয়েছি। আর এইখানে রিফান্ড করে কি হবে, কারণ কি এটা কবে রিস্কেডিউল করব, এটা কতদিন লাগবে, মানে এটা যে 24 আওয়ার্সে সলভ হবে সেই কনফিডেন্সও আমাদের নেই। মানে আমরা যে চাইলে আমরা ভাবছি যে টুমরো উই উইল রিস্কেডিউল দ্য ফ্লাইট, সেটারও যে পসিবিলিটি কতটা, সেটাতেও আমাদের যথেষ্ট উই আর ফিলিং স্কেয়ার যে কালকে রিস্কেডিউল করলাম, এসে দেখলাম প্রবলেমটা তখনও আছে। বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ কি বিকল্প কোনো ব্যবস্থা করেছেন আপনারা? কিচ্ছু বিকল্প ব্যবস্থা করেননি। ওনারা বলেছেন আমাদের সময় লাগবে, আমাদের টাইম লাগবে। এবার যখন জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে কতক্ষণ লাগবে, কবে সলভ হবে, ওনারা কোনো রকম ডেফিনেট কিছু রিপ্লাই ওনারা দিতে পারেননি। তার জন্য ফ্রাস্ট্রেটেড হয়েই তো উনি এভিয়েশন মিনিস্টারকে টুইট করেছেন। তাহলে টুইটের কি কোনো রিপ্লাই? नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। एक तरफ जहां राज्य व केंद्र सरकार तथा मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा आम जनता को सहयोग किए जाने के उद्देश्य को सामने रख उत्तराधिकार सूत्र में पाए गए जमीन पर अपनी आपकी कब्जा किए जाने के प्रयास कर रहे हैं, तो भू संपर्कित मामलों की समाधान किए जाने का प्रयास भी किया जा रहा है। और इस संदर्भ में मिशन वसुंधरा नाम की एक नया परियोजना लागू किया गया है। लेकिन इसी दौरान सुनाई तुलाग्राम पहले खंड के लोग इस सुविधा से वंचित हो रहे हैं, क्योंकि सुनाई कार्यालय में बड़े पैमाने पर लोग लापरवाही कर रहे हैं। सुनाई विधानसभा केंद्र के इस दिन पटवारी कार्यालय में कार्यकर्ता अक्सर उपस्थित नहीं रहते। साथ ही प्रथम खंड के रहने वाले लोग मिशन वसुंधरा की जो मांग कर रहे हैं, अपनी दलील को सुचारू रूप से कार्रवाई में लाना चाहते हैं, उन्हें कोई सहयोग नहीं किया जा रहा है। गौरतलब है कि इस दिन सुनाई चक्र आधिकारिक कार्यालय में हैरानी झेले जाने पर पीड़ित प्रभावित लोगों ने पत्रकारों के समक्ष तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया। আজকে আমরা সোনাই যুব সমাজের পক্ষ থেকে মিশন বসুন্ধরা যে সরকার যে সুবিধা দিয়েছে পাবলিকের স্বার্থে, জনসাধারণের স্বার্থে, এই সুবিধা গোটা আসামের প্রত্যেক আম নাগরিক নিতেছেন। আমরা যখন সোনাই টাউন এলাকার জনসাধারণ যখন আমরা এসডিসি অফিসে আসি, তখন এসে জানতে পারি যে আমাদের গোটা আসামে হচ্ছে, কিন্তু আমাদের টাউনের আসামকে দুর্নীতিমুক্ত করতে আজকে এত সুন্দর সুন্দর সুযোগ সুবিধা দিচ্ছেন উনি পাবলিকের স্বার্থে। আজকে এখানে এসে অনেক মানুষ আমাকে এখানে বলছেন বিভিন্ন ধরনের সমস্যা, ওই बादरीचोड़ा चुराईबाड़ी वाच पोस्ट के अधीन पुलिस प्रशासन ने एक बार फिर से 2 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है। चुराईबाड़ी थाने की इंचार्ज मिंटू झील के नेतृत्व में त्रिपुरा से असम में प्रवेश के दौरान AS01JC 0979 नंबर के शेरावाली नाइट सुपर से रूटीन तलाशी के दौरान 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिनमें एक व्यक्ति मोहम्मद नईम, जिनका उम्र 24 साल बताया जा रहा है, और उनकी पत्नी 19 वर्षीय शाबनूर अंसारी बताया जा रहा है। पति पत्नी को गिरफ्तार किए जाने पर जानकारी मिला कि बांग्लादेश के किशोरगंज होते हुए करीमगंज थाना इलाके के रांगीरचर क्षेत्र के रहने वाले ये दोनों दंपति अगरतला होते हुए असम में प्रवेश कर गुवाहाटी जाने वाले थे। तत्पश्चात मुर्शिदाबाद हुए जा रहे थे। इसी दौरान उनको गैर जिम्मेदाराना कार्रवाई के लिए तथा घूसपैठी के रूप में गिरफ्तार कर लिया गया। उनके पास से कोई पासपोर्ट वीजा नहीं मिलने पर उन्हें कानूनी हिरासत में लिया गया है। আমাদের আসাম চুরাইবাড়ি ওয়াচ পোস্টের সম্মুখে নাকা চেকিংয়ের সময় আগরতলা থেকে গুয়াহাটি যাওয়ার জন্য শেরওয়ালি বাস আসে। এই বাসখানা আমরা চেক করার টাইমে 2 জন বাংলাদেশি সাসপেক্টেড বাংলাদেশি পাওয়া যায়। একজনের নাম মোহাম্মদ নঈম এবং তার স্ত্রীর নাম শাবনুর আনসারি। তাদের বাড়ি বাঙ্গিরচর, ডিস্ট্রিক্ট কিশোরগঞ্জ। তারা
গোপালপুর বর্ডার হইয়া আগরতলার দিকে আসিয়া শেরওয়ালি নাইট সুপার বাসে উঠে বাস নাম্বার AS01JC 0979 এই বাসে তারা গুয়াহাটি যাইব এবং গুয়াহাটি থেকে তারা ওয়েস্ট বেঙ্গল মুর্শিদাবাদ যাওয়ার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ থেকে ইন্ডিয়ায় অবৈধভাবে প্রবেশ করিয়াছে এবং তাদের কাছ থেকে আমরা কিছু জিনিস কাগজপত্র বাংলাদেশের জব্দ করেছি এবং তাদের বিরুদ্ধে আমি একখানা FIR চুরাইবাড়ি বাজারিচড়া पुलिस स्टेशने दाखिल करी। पथारखंडी विधानसभा केंद्र के मेधावी छात्र छात्राओं को सरकारी नौकरी की सुविधा तथा शिक्षा की पहलू को सामने रखते हुए निःशुल्क तौर पर कोचिंग सेंटर का व्यवस्था किया गया है। इस संदर्भ में विधायक किशेंदु पाल के प्रयास से नए कोचिंग सेंटर का भी आनुष्ठानिक तौर पर शुभारंभ किया गया, जिसके चलते टाइम्स के डायरेक्टर सौम्यन दास व जिला परिषद सदस्य शांतिलाल सिन्हा, लोहाईपुआ ब्लॉक मंडल बीजेपी सभापति ऋषिकेश नंदी व दूसरे कई कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में इस कोचिंग सेंटर का आनुष्ठानिक तौर पर उद्घाटन किया गया। আজি আমার পাথারকান্দি কনস্টিটুয়েন্সির প্রজ্ঞা যোজনার জড়িয়তে আমি এটা আমার পূজা ব্যবস্থা ইয়াত যাতে ভাল একটা কোচিং পায় তার কারণে টাইম আমার কোচিং যে এখন মেধার ভিত্তিতে কিভাবে চাকরি পাওয়া যায়, ট্যাগ দিলে ছাত্রছাত্রী ভাই বোনরা যারা পাস করবেন ওনাদেরকে কিভাবে 2016 থেকে 2021 মধ্যে शिवचर के सुप्राचीन बरम बाबा मंदिर प्रांगण में पहली बार गंगा मैया की आरती कार्यक्रम आयोजित किया गया। बरम बाबा तालाब क्षेत्र में गंगा आरती कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर लोग मौजूद थे। स्थानीय सनराइज क्लब के उद्योग से आयोजित बरम बाबा मंदिर के आचार्य पंडित सविता शर्मा के नेतृत्व में मां गंगा की वैदिक मंत्र व पूजन महाआरती कार्यक्रम के जरिए गंगा आरती कार्यक्रम आयोजित किया गया। छठ पूजा के अवसर पर सनराइज क्लब सिलकुड़ी की ओर से पहली बार गंगा आरती कार्यक्रम आयोजित किए जाने पर धर्मप्राण लोगों के बीच उत्साह की माहौल तथा श्रद्धा की माहौल देखने को मिली। शिवचर की पुलिस सुपर रमनदीप कौर के प्रयास से धोलाई विधानसभा केंद्र के लायलापुर खुलीचौड़ा क्षेत्र में पाए गए सतेज बम को एक बार फिर से निष्क्रिय कर दिया गया है। गुवाहाटी से आए बोमा विशेषज्ञ दल ने इस दिन अभियान चलाकर इस बम को पूरी तरह नष्ट किया। लगभग मिट्टी के नीचे दबाकर बम को फोड़ा गया, जिसके चलते इलाके में कोई नुकसान नहीं हुआ। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से लायलापुर क्षेत्र में इस बम को निष्क्रिय न किए जाने पर इलाके के लोगों में तनाव का माहौल बना हुआ था। डिटोनेटर तथा जिलेटिन स्टिक के जरिए इस बम को तैयार किया गया था। किसने इस बम को इस क्षेत्र में लगाया, इस बात पर पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। बहरहाल बम को निष्क्रिय कर दिया गया है और जिसके चलते पुलिस प्रशासन आवासीय क्षेत्र के लोगों के बीच कुछ हद तक राहत की माहौल देखने को मिल रही है।
ওই আর নেহিলাকে দেখাবো দেখাবো समाचारों में लेते हैं एक छोटा सा विराम। ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি রোড শিলচর। ফার্নিচারের জগতে উত্তর পূর্বাঞ্চলের একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান ফার্নিশিং পয়েন্ট। অত্যন্ত কম খরচে ও সুলভ মূল্যে মজবুত টেকসই ফার্নিচার কিনতে হলে আজই পদার্পণ করুন ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি শিলচর। এখানে আপনারা পাচ্ছেন বেডরুম সেট, সোফা সেট, প্রিমিয়াম চেয়ার, ফ্রিডম চেস্টার, স্মার্ট ফার্নিচার এবং রকমারি প্লাস্টিকের আইটেম। এছাড়াও নীলকমল, কার্লন, কসমো এবং বিভিন্ন কোম্পানির উন্নত মানের আসবাব এবং ফার্নিচার। উল্লেখযোগ্য হোলসেল শোরুম হচ্ছে রাধামাধব রোড, বিলপার, ইন্দ্রপ্রস্থ হোটেলের পাশে এবং রিটেল পয়েন্ট হচ্ছে শ্যামাপ্রসাদ রোড, শিলংপট্টি শিলচর। দূরভাষ 03-842-26-16660 এবং 94-350-72166। তাই উন্নত মানের ফার্নিচার কিনতে হলে আজই পদার্পণ করুন ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি রোড, শোরুম রাধামাধব রোড, বিলপার, শিলচর। ঝড় ঝঞ্ঝা যাই আসে, ছোট বড় যে বাড়ি এবার সব সহ্য করে দৃঢ় বছর বছর চলে। বরাক ভ্যালির নতুন পরিচয়, দৃঢ়তা আরেক নাম ভ্যালি সিমেন্ট। ভ্যালি স্ট্রং, वेरी स्ट्रॉन्ग। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। सुबह की पहली किरण निकलते ही हम चल पड़े असम की उस शान की ओर। मैं बनाई और उसे पिलाया। दिया हो सर्दी, बस एक कप रोज कैंडी टी, हेल्दी भी टेस्टी भी। समाचारों के अगले चरण में शिलचर रंगपुर क्षेत्र में पूजा कमेटी के उद्योग से छठ पूजा महोत्सव पालन किया गया। छठ पूजा आयोजन कमेटी के सभापति तारकेश्वर सिंह, संपादक सुधीर सिंह, सचिव प्रमोद कुमार यादव, विशाल कुमार साहब और दूसरे कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में पूरे कार्यक्रम को अंजाम दिया गया। हजारों की तादाद में भक्त प्राण लोगों ने जमकर छठ पूजा का त्योहार पालन किया। इस अवसर पर भगवान सूर्यदेव को अपना अर्घ्य भी प्रदान किए। बाद में इस संदर्भ में वक्तव्य देते हुए संगठन के वरिष्ठ कार्यकर्ता सुदीप सिंह ने विस्तारित तथ्य भी उजागर किए। आदमी तो घाट पे है और उधर में 500-2000 के जैसे आदमी है और छठ व्रती जो है कम से कम 150, हम लोग का जो व्रत करने वाला है वो लोग 150 के जैसा है।
तो आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब बराकवासी के छठ पूजा के उपलक्ष्य में क्या कहना चाहेंगे? बराकवासी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि यहाँ के जो लोकल आदमी हैं वो लोग हम लोग को बहुत सपोर्ट करते हैं, उनके लिए भी हम उनको धन्यवाद करते हैं। मीडिया वाले लोग को भी धन्यवाद करते हैं जो हम लोग को इस पर्व को इतना तवज्जो भी देते हैं, और पुलिस प्रशासन को भी हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं कि वो लोग भी देखिए, वो लोग सुबह सुबह आएंगे, प्रशासन का लोग हम लोग को प्रोटेक्शन के लिए आते हैं, उनको भी धन्यवाद देते हैं। और तमाम जो हमारे असम के वासी हैं, हिंदी भाषी हो, बंगाली भाषी हो या जो भी कोई भी है, उन लोगों को भी धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं कि माँ छठी सभी लोग को बहुत अच्छा से सभी लोग को मतलब अपना कृपा प्रदान करेंगे। कालीमोहन रोड महिला समिति के उद्योग से श्रद्धा व मर्यादा के साथ काली पूजा महोत्सव पालन किया गया था और इसी दौरान एक चित्रांकन कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इलाके के युवा वर्ग तथा कलाकारों ने उत्साह के साथ चित्रांकन कार्यक्रम को अंजाम दिया और दीपावली के त्योहार को और भी रंगीन बनाया। इस कार्यक्रम को लेकर कलाकारों के साथ साथ आयोजक कमेटी के कार्यकर्ताओं में भी उत्साह की दौड़ देखने को मिली। कार्यक्रम को लेकर कलाकारों ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए। नमस्कार, আমি কালীমোহন রোড কমিটির আমি একজন সদস্য। প্রত্যেকবার আমাদের মারা আমাদের কালীমোহন রোডে এই পুজোর আয়োজনটা করেন, আর আমরা যারা জুনিয়র কমিটিতে আছে, আমরা যারা বাচ্চা মেম্বার আছে, আমরাও করি। আমরা প্রত্যেক বছর আমাদের এই যে রঙ্গোলিটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এই রঙ্গোলিটা আমাদের ভিতরে করা হয়, ভিতরে আয়োজনটা করা হয় এবং আমাদের এই যে ভিতরে যে আপনারা প্যান্ডেলের ভিতরে যে ডেকোরেশনটা দেখতে পাচ্ছেন এটাও করা হয়, এটা আমরাই করি। এবং এবার যেহেতু আমরা একটা পথ আলপনার আমাদের একজন বন্ধু রাজবীর করে এই মানে চিন্তাধারাটা দিয়েছিল, তো আমাদের স্যার মনোজ দাস উনিও মানে আমাদের ডাকে সাড়া দিয়ে এসেছেন। আমরা সকাল 5টার থেকে এই রঙ্গোলিটা বানাচ্ছি এবং দেখতে পাচ্ছেন যে আমরা চেষ্টা করেছি এই রঙ্গোলিটাকে আরও সুন্দর বানানো এবং এই রঙ্গোলিটার যেটা মেইন আইডিয়াটা ওটা রাজবীর করে দিয়েছিলেন এবং আমাদের স্যার মনোজ দাস উনি আমাদেরকে গাইড করছেন, আর আমরা উৎসাহের সাথে এই রঙ্গোলিটা করছি। এখন দেখা যাক কতটুকু হয়। এই ক্যামেরার সামনে খালি কথা हाँ ठीक है लखीमपुर विधानसभा केंद्र के बड़ा मामदा इलाके में यातायात के मार्ग बेहाल होने पर लोग परेशानी झेल रहे हैं। हालांकि राज्य व केंद्र सरकार की ओर से एक आर्थिक अनुमोदन के चलते राजमार्ग का निर्माण कार्य चल रहा है, तो इसी दौरान बड़ा मामदा घाट क्षेत्र में छठ पूजा का जो घाट बनाया गया था, इस क्षेत्र में सरकारी सड़क बनने पर घाट पूरी तरह सड़क के अधीन आ रहा है और लोग परेशानी झेल रहे हैं। छठ पूजा के पावन अवसर पर जेसीबी के जरिए मिट्टी काटकर इस क्षेत्र को बनाया गया और छठ पूजा घाट को संस्कार किया गया, लेकिन इलाके के लोगों का मांग है कि जल्द से जल्द इस क्षेत्र में स्थायी तौर पे घाट बनाया जाए, क्योंकि जो घाट अस्थायी तौर पे इलाके के लोग 2,61,000 रुपए के लागत से बनाए थे, वे राजमार्ग के चपेट में आ रहा है। जबकि राजमार्ग बनाने के लिए सरकार अनुमोदन दे चुकी है, निर्माण कार्य भी शुरू हो चुका है, तो इसी दौरान एकाएक अगर इस सड़क को बना लिया गया तो छठ पूजा के घाट को भी उसकी लपेट में ले लिया जाएगा। इस संदर्भ में जल्द से जल्द विधायक कौशिक राय को अपील किया गया है कि इस क्षेत्र में घाट को बनाया जाए और राजमार्ग के निर्माण कार्यों पर निगरानी रखी जाए। इलाके के पीड़ित प्रभावित लोगों ने पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान विस्तारित खुलासा भी किए और जमकर छोटा मामदा क्षेत्र में छठ पूजा महोत्सव भी पालन किया। क्या कहना चाहेंगे आपके? नमस्ते, जय श्री राम। हमें के जे बड़ा मामला में कई साल से दीदी द्वारा छठ पूजा पर्व मनाया गया, चाहे कि यहाँ दिन पहले BW डिपार्टमेंट के तरफ से सूचित कर गया बा कि यहाँ पर ब्रिज बनने, तो हमारे सरकार से अपील बा है कि यहाँ
नवजुवक माता बहन की तरफ से MLA होकर जे भी हम उनको समाज करते हैं कि हमने जो घाट का क्या समस्या है। देखिए भैया हमने के यही अपील बा कि जाके आगे बढ़ कि हमने के बिहारी बन जाए चाहिए। हमारे विधायक से MP MLA से सभी से अनुरोध बा और जाके नेक कहीं आप लोग से यही से हम आप लोग जाना वो संगठन के जाइए ऐसे ऐसे कह रहे मीडिया बोलावन मीडिया हम लोग बोलो छठ मैया की, छठ मैया की, छठ मैया की। छठ पूजा के पावन अवसर पर जो बड़ा कटी के लोग हैं उन्हें क्या कहना चाहेंगे और ये बड़ा मामला इतनी बड़ी आयोजन बहुत ही भव्य आयोजन आज कई क्षेत्रों में ऐसे कार्यक्रम आयोजित जा रहे हैं। गुंजन में भी बड़े पैमाने पर कार्यक्रम आयोजित जा रहे हैं। तो बड़ा मामला में जो भव्य माहौल देखने को मिला, आप क्या कहना चाहेंगे इलाके के लोगों से, आवासीय क्षेत्र के लोगों से? हम यही कहना चाहते हैं कि यहाँ जितने आए हैं सबको हमारा अंतर से धन्यवाद करते हैं। आज जो छठ माई की पूजा है और छठ माई की पूजा में इस बार हम लोग इसीलिए मीडिया को लाए हैं। जैसे हम लोग बहुत दूर से यहाँ पे छठ घाट बनाया था, आज रास्ता के हम लोगों को रास्ता लगे चला जा रहा है। हम लोग और यहाँ के सभी सदस्यों को यही मशहूर है जैसे कि पहले हम लोग छठ घाट बनाए थे बस उसी तरीका से हम लोग सड़क बनने की क्या परेशानी है? सड़क बनने से यही परेशानी कि सड़क के नीचे छठ घाट अभी छठ घाट मतलब खत्म हो गया है। अब बोले तो छठ घाट नहीं, जो हम लोग बनाए थे वो अभी पूरा कंक्रीट का बना नहीं पूरा ढलाई का काम हुआ। 2,61,000 रुपया हम लोग को मिला ग्रांट हुआ था, पूरा कटिंग करके 2,61,000 रुपया हम लोग को दिया था। इसी से हम लोग बनाए। अब 7 साल से हम लोग मतलब बहुत जोर करते हैं। हमारे राज्य वाला जब MLA थे उनके पास बहुत उसके बाद जाने बच्चे को हम लोग मिलने के बाद इस बार घाट अपने बनाया और गाड़ी सड़क के अंदर। इस साल कैसे बना रहे हैं? नहीं, इस साल अभी तक तो सड़क यहाँ तक नहीं पहुँचा है, लेकिन 2-4 दिन में वो पहुँच जाएगा। तो सरकार से क्या अपील रहेगी आपकी? यही अपील है जैसे कि हम लोग इतना दिन से जोर करके छठ घाट लाए, बस सरकार से यही हम लोग के निवेदन है और अनुरोध भी है कि हम लोग के छठ घाट फिर से बना दिया जाए। अगर वो कॉन्ट्रैक्टर से बनवाए या खुद से बनवाए, हम लोग के छठ घाट चाहिए। यहाँ पे अपना लिए कोई कुछ नहीं मांगता है। हम लोग ये 10 का आप तो देख रहे हैं यहाँ पे कितना भीड़ है, उन सभी लोगों के लिए हम लोग घाट मांग रहे हैं। करीमगंज जिले के करीमगंज महाविद्यालय के सामने एकाएक एक पेड़ टूट के गिर जाने से इलाके के लोगों में तनाव का माहौल छा गया। सूत्रों के अनुसार पेड़ टूटकर गिर जाने से राजमार्ग में यातायात परिसेवा बंद पड़ गया। लोगों में तनाव का माहौल छाया रहा। आखिरकार SDRF के जवानों ने घटनास्थल पर पहुंचकर पेड़ को काटकर राजमार्ग से हटाया और यातायात परिसेवा को सामान्य किया। তো কিছুক্ষণ আগে এখানে একটা গাছ ছিল অনেক পুরনো স্টেশন রোডে, আর এই গাছটা কিছুদিন থেকেই একটু মানে ঝুঁকিয়েছিল, অনেক পুরনো। আর হঠাৎ করে আমরা শব্দ শুনলাম, এবার কালী পুজোর প্যান্ডেলের ভিতরে আমাদের ছিলাম, আমরা হঠাৎ শুনে দৌড়ে এসে দেখলাম যে একটা গাড়ির উপর এটা পড়ে রয়েছে, একটা ওয়াগনের উপর। ওয়াগনারটা ক্ষতি হয়েছে, একটা দোকান ছিল পানের দোকান, সেটাও ক্ষতি হয়েছে। धौलाई विधानसभा केंद्र के बागाबाजार रूपनी नदी तटवर्ती क्षेत्र में बड़े पैमाने पर आनंद उल्लास के साथ छठ पूजा महोत्सव पालन किया गया। छठ पूजा को केंद्रित कर इलाके के लोगों में उत्साह की दौड़ देखने को मिली। पूरे देश के साथ असम के सिलचर शहर में भी विभिन्न धार्मिक परंपराओं के जरिए मनाया जा रहा है छठ महापर्व की पावन त्योहार।
सूर्य आराधना का सबसे बड़ा पर्व है छठ। सदियों से छठ पूजा को प्रकृति उपासना का महापर्व माना जाता है। छठ पूजा को सूर्य षष्ठी भी कहते हैं। 4 दिवसीय यह पर्व को नदी सहित विभिन्न जलाशयों में अर्घ अर्पित कर मनाया जाता है। दीपावली के ठीक 3 दिन बाद शुरू होता है यह पर्व। 4 दिवसीय यह छठ महापर्व को लेकर लोगों में काफी उत्साह की दौड़ देखने को मिल रही है। सूर्य और प्रकृति उपासना का यह पर्व पूरे देश के साथ असम राज्य के कछार जिले में भी विभिन्न धार्मिक परंपराओं के साथ लोगों को मनाते देखा गया। पहले दिन विभिन्न समुदाय के लोगों को नहाने खाने के साथ साथ पवित्र होते देखा गया। दूसरे दिन खरना से लोगों ने व्रत की शुरुआत की। तीसरे दिन यानी बुधवार शाम को सिलचर के बराक नदी सहित विभिन्न जलाशयों में लोगों ने ढलते सूर्य को अपना अर्घ अर्पित किया। गौरतलब है कि बराक नदी सहित शहर भर में स्थित आदि विभिन्न जलाशयों में खड़े होकर सूर्यदेव को अर्घ देने वाले यह त्योहार दरअसल सूर्य का पैदा होने का त्योहार है। जैसे बच्चे के जन्म के बाद छठे दिन का जो परंपरा पारिवारिक तौर पर मनाया जाता है, वैसे ही यह छठ पूजा सूर्य षष्ठी है। बुधवार असम राज्य के सिलचर शहर में आयोजित छठ महापर्व को लेकर विभिन्न स्तर के लोगों के बीच उत्साह के माहौल देखने को मिली। छठ पूजा को केंद्रित कर लोगों ने जमकर श्रद्धांजलि अर्पण करते हुए देखा गया। भारत के विशेषकर भोजपुरी भाषी अंचल में छठ मैया की जो पूजा अर्चना शुरू हुई थी, लेकिन वर्तमान में सारा विश्व में जहाँ भी भोजपुरी भाषी लोग हैं और इसके अलावा हमारे बराक घाटी में भी सभी जो व्रती हैं वो लोग छठ का आयोजन किया है उन लोगों ने। और हमारे बराक घाटी में केवल भोजपुरी भाषी नहीं, यहाँ पर देखने में बंगाली भाषी, मणिपुरी भाषी सभी लोग इस पूजा में योगदान करते हैं और व्रती भी बनते हैं। वो सब सामूहिक रूप से पूजा करते हैं। छठ माई का महिमा अपरंपार है। छठ माई के पास जो मनौती लेकर जाते हैं लोग, जो मनौती व्रती करते हैं, उनको छठ माई उनको मान लीजिए किसी का संतान नहीं हुआ है, किसी का अगर स्वामी अगर अस्वस्थ हैं, इस बारे में अगर मनौती करते हैं तो छठ माई कृपा करती हैं। और इसीलिए सभी मिलकर हम लोग इस बार भी छठ माई का व्रत कर रहे हैं। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। सोनाई विधानसभा केंद्र के तुलारगाम पहले खंड के क्षेत्र के लोग मिशन वसुंधरा की सुविधा से हो रहे हैं वंचित। पत्रकारों के सामने व्यक्त किया नाराजगी। चुनाईबाड़ी पुलिस ने रूटीन तलाशी के दौरान फिर से 2 बांग्लादेशियों को किया गिरफ्तार। आगरतला से होते हुए गुवाहाटी व कोलकाता जाने की चल रही थी प्रयास। पथारखंड के विधायक जितेंद्र पाल ने पथारखंडी रविंद्र भवन शिक्षा गृह में पुरस्कार योजना को लेकर छात्र छात्राओं के अध्ययन के बारे में नए कोर्स का किया शुरुआत। कोचिंग सेंटर खोले जाने पर छात्र छात्राओं में देखी जा रही है खुशी की माहौल। सिलचर के शिलकुड़ी क्षेत्र में स्थित बरम बाबा मंदिर में पहली बार आयोजित हुआ गंगा आरती कार्यक्रम। वक्त पर लोगों की देखी गई ताता, लोगों में छाई हुई है खुशी की माहौल। कछार जिले के असम मिजोरम सीमांतवर्ती क्षेत्र कुलीचोड़ा में सतीश
को निष्क्रिय करने में जुटे गुवाहाटी के विशेषज्ञ दल, कामयाबी मिलने पर व्यक्त किया खुशी। छठ पूजा के पावन अवसर पर बराक वार्ता के सभी दर्शकों को हार्दिक बधाई प्रकट करते हुए अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।